Hello, my name is Surendra Das and I am the maths teacher at Minata. And today we are going to continue the topic number system with lecture number 5 of class 9. आज हम क्लास 9 का नंबर सिस्टम टॉपिक का कंटिन्यू करेंगे और इसका 5th क्लास आज करने वाले हैं। तो पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें के बारे में हमें ध्यान देना है कि अगर ए और बी रियल नंबर है if a and b are the real numbers, then we can say that under root ab is equals to under root a into under root b. And the second, you have to know if it is under root a by b, it should be equals to under root a divided by under root b. Now, coming to the example number 1. So if it is given that add 3 root 2 plus 7 root 3 and root 2 minus 5 root 3. Now you have to check which terms are like terms. This term and this term like terms. So you can have to make it in the group. So it will be 3 root 2. It is, you have to add this. So first we need to write this way. So plus root 2 minus 5 root 3. Now these two are the like, so it will be 3 root 2 plus root 2, and these two terms are the like terms, so 7 root 3 minus 5 root 3. So here you can take root 2 common, so here you will get 3 and this side it will be 1, plus if you take root 3 common, so it will be 7 minus 5, so it will be 4 root 2 plus 2 root 3. That will be the final answer of this question. Now, if second question is given that suppose multiply 5 root 11 by 3 root 11. So, if you want to multiply it, what we will write 5 root 11 multiply 3 root 11. So, now the whole numbers you have to make it together. So, 5 into 3 multiply root 11 multiply root 11. So root 11 and root 11 makes 11 and 5 multiply 3 makes 15. So 15 into 11, that will be 165. So 165 is the answer of this question. Now if it is given the division, so example number 3, if it is given that divide 15 root 15 by 3 root 5. How we can divide? It is very easy. First, you have to write this 15 root 15 divide by 3 root 5. Now, root 15, how we can write root 15? Root 5 multiply root 3. Now, divide by 3 root 5. So, root 5 and root 5 get cancelled. 3 5s are 15. So, answer will be 5 root 3. This is example number 3. Now, if it is asking about a question that is simplification, or you have to simplify, it is given 3 plus root 3 multiply 2 plus root 2. How we can do? It is very easy. First, you need to check this 3 first multiply with 2. So it will be 3 multiply 2. Then 3 multiply with root 2. Then 3
multiply with root 2. Then root 3 multiply with 2. So 2 into root 3 plus root 3 multiply with root. So what will be the answer? 6 plus 3 root 2 plus, it will be plus 2 root 3 plus root 6, and it will be the correct answer of this question. Now, if this kind of question comes, 6 plus root 6 multiplies 6 minus root 6. It is also very easy. So here you can see the first term plus second term. Here the same, first term, second term, but sign is only plus and minus. So first, if you assume that it is A, it is B, what is given here? A plus B. And if you assume it as A and it is B, so it is A minus B. Now there is a formula, that is A plus B into A minus B is equals to A square minus B square. Just put the value here. A square means A is 6, so 6 square minus B is root 6, so root 6 square. So it will be 6 square 36 minus root 6 square is 6. So the answer will be 30. So this will be the answer of this question. Now if another question comes in this form, that find root 3 plus root 2 whole square. So in this kind of question, you have to assume that suppose it is A and it is B. So it is in the form of A plus B whole square. And we know what is the formula of A plus B whole square? It is A square plus 2AB plus B square. Now here A square means root 3 whole square plus 2AB. 2 into root 3 into root 2 plus B square, that is root 2 whole square. So root 3 whole square will be 3 plus 2 into root 3 root 6 plus 2. So 5 plus 2 root 6 will be the answer of this question. Now comes to a simplification. Another question is given, suppose it is given here, so find the value of this, or you have to find the simplification. Under root 72 divide by 5 root 72 plus 3 root 288 plus or you can do it as minus, so it will be minus 2 root 648. How we can solve? Now it is look like very difficult, but it is not actually so much difficult. It is very easy. So now root 72, you have to keep it root 72 unchanged. Now it will be 5 root 72 plus 3 root 288. How we can write 288? 4 into 72 minus 2 root 648. How we can write 648? It will be 9 into 72. Now it is very easy. So take root 72, divide by 5 root 72 plus root 4 will be 2. So 2 into 3, that will be 6. 6 root 72 plus root 9 is 3. 3 into 2, that is 6. 6 root 72. So 6 root 72 plus and minus, so it is minus. So plus and minus get cancelled. So here 72 root divide by 5 root 72, and root 72 and root 72 is cancelled, so answer should be 1 by 5. So 1 by 5 is the correct answer of this question. Now if it is given, next question, simplify under root a square minus b square plus a under root a square plus b square plus b divide by under root a square plus b square minus b
divide by under root a square minus b square. There is a at the here, so a minus this. How we can do? It is also very easy. So first you have to write all these terms. So a square minus b square plus a, okay, or you can write in this way, it will be easier to think. So we can write this a plus root a square minus b square, same thing, divide by root a square plus b square plus b, multiply. If you multiply, it will be the reciprocal of it. So it will be a minus root a square minus b square divide by root a square minus a square plus b square minus b. Now it is very easy. Now it is a plus b into a minus b. You know the formula, a square minus b square. So that means, suppose this is a and this is b. So a square minus b square. So a square minus b square over square. Now the denominator, it is, suppose it is x plus y, x minus x square minus y square. So this is x. So its square, it will be x square minus b square. So here you will get a square minus, this will be root will be cancelled with the square. It will be minus a square minus of minus, so plus b square. Divide by a square minus b square. Sorry, a square plus b square it should be. So a square plus b square minus b square. So minus b square plus b square cancel, plus a square minus a square cancel. So the answer is b square by a square. That will be the correct answer of this question. Okay, so if this kind of question comes, you can easily solve these questions. Now you have to do this represent root 2 on the number line. रूट 2 को अगर आपको नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करने को बोले तो क्या कर पाओगे? तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना, यह है एक्स एक्सिस, यह है एक्स डैश, यह है बीच में, इसे हम ओ मान लेंगे। तो अभी यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं ए, जहां पे हमें पता है कि हम ले लेते हैं कि ओ ए जो है वो एक यूनिट है, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं ए बी, जो कि परपेंडिकुलर होगा ओ ए के ऊपर। तो ए बी ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ए बी यहाँ पर एक लंब खींच लेते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये लंब बन गया, तो ये 90 डिग्री होगा। तो इसको हम बी लिख लेते हैं, इसका पॉइंट क्या है, बी है। तो यहाँ पे क्या हमने लिया, ओ ए जो है ये एक यूनिट है, ये ले लिया, और ए बी एक परपेंडिकुलर हमने खींच लिया, और जो कि ओ ए के ऊपर लंब है। तो और हमें क्या पता है, यहाँ पे जो ए बी का वैल्यू है, यानी ये भी एक यूनिट है, ए बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये भी एक यूनिट ही है। तो यहाँ से हम ओ बी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनुअस का स्क्वायर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है हाइपोटेनुअस, यानी यहाँ पे हाइपोटेनुअस क्या है, ओ बी। सो इसका स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर, यानी ए बी जो लंब है इसका स्क्वायर, प्लस भूमि जो है यानी बेस जो है इसके स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ओ बी स्क्वायर जो है वो दोनों साइड, बाकी दो साइड्स जो है उसके
स्क्वायर के बराबर होगा। तो ओबी को हम निकाल लेते हैं। ओबी क्या हो जाएगा, इसके रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी इन दोनों के रूट होगा, ये भी एक ये भी एक। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तो रूट टू। तो ये वैल्यू आ गया रूट टू। अभी अगर ओ बी रूट दो है, ओ बी को हम रेडियस मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ओ को हम सेंटर मान लेते हैं, ओ इज द सेंटर। अगर हम एक सर्कल खींचते हैं तो क्या आएगा, ओ इज द सेंटर एंड ओ बी इज द रेडियस। अगर हम इसे रेडियस मान के एक सर्कल खींच लेते हैं तो यहाँ पे ये बनेगा एक पॉइंट, तो हम ये मान लेते हैं कि P। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, ये OX जो है मीट करेगा किससे, OX मीट करेगा P पॉइंट पे। P पॉइंट पे अगर मीट करेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो OB है ये भी रेडियस है, और ये आपका OP भी रेडियस है, और वो क्या है, रूट टू यूनिट है। तो अभी हम रूट टू को यहां से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। अगर आपको रूट थ्री निकालने को बोला जाए तो क्या करोगे, वो भी इतना ही आसान है। तो रूट थ्री निकालने को बोला जाए तब क्या करोगे, रूट थ्री निकालने को बोला जाए तब हम क्या लेंगे, हमें पता है ओबी और ओपी जो है रूट टू है। तो यहाँ पे हम एक लंब खींच लेते हैं जहां पे बी सी, हम एक यहाँ पर सी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बी सी जो लंब है किसके ऊपर होगा, ओबी के ऊपर, और बी सी क्या होगा, बी सी ए के यूनिट हो जाएगा। तो बी से हम सी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर बी से एक लंब होगा और यहां से इसको ड्रॉ कर लेना है, ये लंब है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये एक है। और आपको ये पता चल गया कि ये रूट टू है। ये अगर ओ बी रूट टू है और ये आप मान लेना कि सी है, तो बी सी क्या है, एक यूनिट है, और आपको पता है ओ बी जो है रूट टू यूनिट है। तो आप यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है आपके पास ओ बी सी। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो ओ सी साइड का वैल्यू, ये रूट हो जाएगा किसका, रूट होगा ओ बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ओ बी क्या है, रूट टू, सो रूट टू का स्क्वायर प्लस बी सी एक है, एक का स्क्वायर, तो दो प्लस एक ये बनेगा तीन, तो रूट तीन, उसी का वैल्यू क्या आ गया है, ये रूट तीन। तो इसी तरह से आप रूट चार को भी निकाल सकते हो, रूट पांच को भी निकाल सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीकों से आप इसको कर सकते हो। किसी भी संख्या को इस तरह से नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सेम मेथड होने वाला है। ये रूट तीन होगा तो और एक लंब खींच लेना यहाँ पे, तो ये एक होगा, तो रूट तीन और एक, तो रूट तीन का स्क्वायर तीन और एक का स्क्वायर एक, चार, रूट चार दो हो जाएगा। आसानी से आप कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स on the number line बट इस केस में क्या है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन आपको चाहिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, बारीकी से हमें ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिया गया है कि आपको एक पॉइंट ढूंढना है 3.895, सो इसको आपको लोकेट करना है ऑन द नंबर लाइन के ऊपर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कर पाते, तो पहले आपको ये देखना है जो 3.895 है बेसिकली किन दोनों पॉइंट के बीच में है। तो ये अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये अगर जीरो है, ये है एक, ये है दो, ये है तीन,
ये है 4। तो ये बेसिकली कहाँ पे होगा, ये 3 और 4 के बीच में होगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं, पहले मैग्निफिकेशन में हम क्या बोल सकते हैं, 3.895 जो है वो किस किस दोनों संख्या के बीच में लाई करेगा, इट लाइज बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में ये लाई करेगा। सो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। सो क्या क्या हो सकता है, एंड वी हैव टू मार्क देम। कैसे हम मार्क करेंगे इसको, हम इसको मार्क करेंगे, देखो हम इसको 3 और 4 के बीच में है तो इसको थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे। सो 3 और 4 के बीच अगर मैग्नीफाई करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो मैग्नीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, फिर 3.5, फिर 3.6। थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, 3.6। फिर क्या होगा, यहाँ पर 3.7, यहाँ पर 3.8, फिर यहाँ पर 3.9, और फिर आपको यहाँ पे 4 दिखने वाला है। तो इसको थोड़ा हमने बड़ा कर लिया। तो हमने 3.1, 3.2, 3.3, इस तरह से हमने करते जाना है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, पॉइंट को हमने क्या देखा, ये 3 और 4 के बीच में है। फिर हमने इसको भी मैग्नीफाई किया, थोड़ा क्लोजली देखा, तो हमें क्या पता चला कि 3 और 4 के बीच अगर 10 खंड करेंगे तो इसमें से 3.1, 2, 3, 4 इस तरह से चलना है। और ये कहाँ पे आएगा वो भी हम देख लेते हैं। थोड़ा मैग्नीफाई करने के बाद हमें ये पता चला 3.895 जो है वो 3 और 4 के बीच तो होगा, मगर और भी बारीकी से अगर देखेंगे, if we closely look at this, you can find that it is lie between 3.895, so 3.8 and 3.9। सो ये 3.8 और 3.9 इसके बीच में होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस लेवल को थोड़ा डिवाइड करेंगे। देन वी डिवाइड 3.8 टू 3.9, मतलब 3.8 से 3.9 को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे इक्वली 10 पार्ट्स में। इक्वली 10 पार्ट्स में इसे भी डिवाइड करने वाले हैं। मतलब सर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 3.8 से शुरू होके 3.9 तक जाएगा, यानी इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 3.8 और 9 के बीच जो गैप है इसको हम 10 खंड में डिवाइड करेंगे। ये 3.80, ये 3.81, ये 3.82, ये 3.83 आएगा, यहाँ पर 3.84, यहाँ पर 3.85, 3.86 आएगा, 3.87, 3.88, यहाँ पर 3.89 और 3.9 या फिर 3.90 हम बोल सकते हैं इसको। तो इसको क्या कैसे हमने डिवाइड किया, सो वो बना 3.81, 3.82, इस तरह से वो चलता गया। फिर हम क्या करेंगे, उसको और बारीकी से देखना है क्योंकि हमें 3.895 चाहिए। तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा मैग्नीफाई किया। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, 3.859 जो है ये किस किस के बीच में रहेगा। देखो 3.895, तो 89 और 90 इनके बीच में रहने वाला है। तो मतलब ये लाई करेगा किसके बीच में, बिटवीन 3.89 एंड 3.9, इन दोनों के बीच में ये पॉइंट जो है वो लाई करेगा। अभी आपको क्या करना है, अभी इसको और थोड़ा छोटा करना है। तो 3.9 से 3.9 तक जो है, 3.89 से 3.9 जो भी है, तो इसको हम बारीकी से इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे फर्दर इक्वली 10 पार्ट में। ठीक है, तो वी डिवाइड नाउ। हमने क्या किया,
यहाँ पर क्या करेंगे हम, वी डिवाइड, हमने और भी बारीकी से हमें देखना है, वी डिवाइड 3.89 एंड 3.9 इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। हमने यहाँ पर भी 10 इक्वल पार्ट्स में 3.89 और 3.9 के बीच का जो संख्या है इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, 3.890 बोल सकते हैं, 900 बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3.891, 3.892, ये बनेगा 3.893, फिर ये 3.894, यहाँ पर 3.895, यहाँ पर 3.896, 3.897, यहाँ पर 3.898, यहाँ पर 3.899। तो हमने अगर इसको इक्वली डिवाइड कर दिया तो हमें क्या पता चला कि इट लाइज बिटवीन 3, कहाँ पे है वो, 3.895, कहाँ पे है, इधर है, 3.895 जो है 3.89 और 3.9 के बीच में है, और ये है पॉइंट पी। So I hope you enjoyed the session. Thank you for joining the session. I'm ending this session.